your mentor for this course. Acha, so this demo session is going to be bilingual. Now, what is bilingual? Bilingual is 2 languages. So I'm going to speak to you in English और मैं आपसे उर्दू में बात करूँगी ताकि आप मेरी चीज़ समझ पाएं और मुझे अंडरस्टैंड करें, and then you guys can take a very sound decision, informed decision about either taking this course or not taking this course. By the way, demos मेरे सबसे favorite होते हैं because मुझे पता होता है exactly कि मुझे क्या बात करनी है, but मुझे पता होता है कि अब हर दफ़ा there is somebody different who's listening to me, and there are so many people listening to me. So yeah, I'm very happy most of the times, and this is my favorite part of the day. About myself, this is one thing that I have never told anybody in my demos. मैंने कभी demo में ये बात किसी को नहीं बताई. About myself, मेरा सबसे बड़ा trait ये है कि I love teaching. जैसे मैम इंजा ने बताया आपको कि मैं business student हूँ, बिल्कुल. अगर मैं आपको अपनी तफसीलात थोड़ी और दूँ तो I am a business marketing student. मैं marketing student हूँ. I love marketing, बल्कि student के अलावा मैं graduate हूँ, and I work for a very big brand, तो मैं उसके लिए काम करती हूँ as a marketing person. मैं marketing उसमें करती हूँ. So telling you is that I am a marketing person, I'm a business person, I'm a business graduate, everything. But why am I teaching English? देखो, teaching and teaching English, they're two different things. Why am I teaching? I'm teaching because I love teaching. Teaching is something मैं कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, और ना सिर्फ पढ़ाना बल्कि लोगों से बात करना, लोगों की बात सुनना, समझना, और फिर ये फूकल बाद में आता है. So I just really like it. अब why English? English because I know कि मेरा कोई डिग्री नहीं है. मैं मेरे हाथ में डिग्री नहीं है, हकीकत है. I'm not an English literature person. I am not any kind of आप कह लो कि मैं कोई next level जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आई हूँ. I'm a general, natural, normal, definite girl. But what is one thing that is common in me that makes me different from anyone else is my English experience. मेरे पास English का experience massive है. कैसे है? Because I trot a lot. Trot का मतलब है घूमना, जगहों को discover करना, here and there, roaming around and everything. I visit to places. मैंने अमेरिका में अभी 2 batches लिए थे अपने जून and जुलाई के. So this tells that I'm extremely fascinated with visiting around the world. बाहर घूमना मुझे बहुत पसंद है, और बाहर में एक ज़बान इस्तेमाल होती है, that is English. So I am very fond of my English language, and not just me, my friends and my family, they also like me speaking English. So basically ये मेरा मोटो था, यहाँ से मेरी गाड़ी शुरू हुई. I'm good at it. I just started teaching it, and I'm really good at it. मतलब अब मुझे महसूस होता है कि अगर मैं ये चीज़ ना करूँ ना तो मेरा दिन मुकम्मल नहीं है. मुझे शुरू में लगता होता है कि यार आज तो क्लास है, कैसे निकालूंगी. ऑब्वियसली अगर एक बंदा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे घर वापस आएगा तो उसकी हटेगी एक पॉइंट पर कि यार बस कर दो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ाना. पर जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना तो आई एम लाइक यार I needed it. So this is how it is. Ma'am Minsia, can you please check up the annotations? Okay, so moving forward, I'll tell you about my mission later. I'll tell you the main thing about English speakers. Say it. अब English speakers कौन होते हैं? Who are English speakers? Ma'am Insia, are you there? Ma'am Insia, Yes, are ma'am. you Yes, there? ma'am. Ma'am, please just tackle the annotations. Ma'am, actually you can do it because you are sharing the screen. Oh. ऊपर आप वहाँ ऑप्शंस देखेंगी, मोर का आ रहा होगा, जहाँ स्क्रीन शेयरिंग ऊपर शो हो रहा होता है वहाँ मोर का ऑप्शन आ रहा होगा. इंसिया, मैं प्रॉब्लम ये है that I am not from a laptop and all, but चलें, I'll try. Okay. And one more thing, जिसको भी मैम की जो भी मैम को जिसकी मैम को आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ अपनी ऑडियो कनेक्ट कर लें. अपने लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जो है वो आपके ऑप्शन आ रहा होगा जॉइन ऑडियो का, तो प्लीज़ वो ऑडियो ज्वाइन कर लें. तो आपका जो भी इशू है आवाज़ को, आप लोग का जो है वो सॉल्व हो जाएगा. मैम यू कैन कंटिन्यू. आप मैम इनसे आप ना ये मैसेज कर दें क्योंकि जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो ये भी नहीं सुन पाया होगा. जी, ओके. Okay, so native and newbie. Sorry, थोड़ा distract हो गए हम. So who is a native and who is a newbie? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. मैं आपके सामने ना एक fact पेश कर रही हूँ. I'm giving you a fact. A fact is that you are 1,000 times better than an English speaker. एक अंग्रेज से ना आप 1000 गुना बेहतर हैं.
प्रूव कर सकती हूँ. I will prove it to you. So the thing is that a native speaker is an American, is probably an Asian, is probably a European, जिसकी आंखें चपटी हैं, शायद वो बिल्कुल नीग्रो अफ्रीकन है, बट वो खालिस अंग्रेजी बोलता है, ऑक्सफोर्ड लेवल की अंग्रेजी बोलता है या फिर अमेरिकन लेवल की अंग्रेजी बोलता है, बस अच्छी सी अंग्रेजी बोलता है. हम उसे कहते हैं यार क्या अंग्रेज है, काश हम इसके जैसे होते, काश हम इतने फ्लुएंट होते, राइट? But let me tell you, who's a newbie? A newbie is somebody जो के पैदा होते साथ ही वो ज़बान नहीं सीखता, बल्कि अपने सराउंडिंग से, अपनी एज से और अपने एनवायरनमेंट से एक पॉइंट पर आकर वो अंग्रेजी सीखना और बोलना जानता है. अब एक बच्चा अगर बचपन से स्पून फीड हो रहा है एक लैंग्वेज को लेकर, जैसे हम उर्दू को हुए हैं, सो इफ आई नो उर्दू, मेरा इसमें कोई चार्म नहीं है. I'm not a fascinating girl. I know Urdu because मुझे सिखाई गई है ये लैंग्वेज, मेरे साथ ये लैंग्वेज बोली गई है. सो ऑब्वियसली अगर एक बच्चा अंग्रेजी सुनते हुए आएगा तो वो अंग्रेजी बोलेगा, अगर एक बच्चा उर्दू सुनते हुए आएगा वो उर्दू कहेगा, अगर पश्तो सुनते हुए आएगा तो पश्तो बोलेगा. दैट इज बेसिक. बट अगर वही बंदा उर्दू के अलावा अंग्रेजी बोलना जानता हो, अंग्रेजी को समझना जानता हो, कल्चरल लैंग्वेज जानता हो, अरबिक पढ़ना जानता हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप संस्कृत पढ़ते होंगे क्योंकि गीता संस्कृत में है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप ऑब्वियसली कुरान पढ़ते हैं, कुरान इज अरबिक. आप मुझे एक बात बताएं कि कितनी सारी ऐसी ज़बानें हैं जो कि आपको बैठे बैठे आती हैं. वी आर देसीज, सो डेफिनेटली हमने पंजाबी गाने तो जरूर सुने होंगे. कोई भी बंदा अगर पंजाबी गाने नहीं सुनता तो वो बहुत बोरिंग है, बिकॉज पंजाबी सॉन्ग्स आर लाइक अमेजिंग. सो पंजाबी गाने सुनने वाला पंजाबी समझता है तभी तो वो गाने सुनता है. सो नाउ टेल मी हियर राइट नाउ एट दिस पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी ज़बानें आती हैं. आई नो उर्दू, आई नो पंजाबी बिकॉज माई मॉम इज फ्रॉम पंजाब. मैं सिंध से हूँ तो मुझे सिंध की चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ा बहुत सिंध के गाने आ जाते हैं, सिंधी समझ आ जाती है, अच्छा खासा आइडिया है मुझे. अरबिक पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुस्लिम हूँ. फिफ्थ अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ. तो 5 ज़बानें मुझे बैठे बैठे आती हैं. कैन यू सी? और बेशक आपको भी आती होंगी, 3 तो डेफिनेटली आती होंगी. So what I'm trying to tell you is that you are so good. You are so much better than a normal अंग्रेज. तो फिर क्यों हम अपने अंदर ये चीज सोच कर रखते हैं कि हम उनसे कम हैं? हम उनसे बहुत आगे हैं और हमारा दिमाग ना उनसे 10 टाइम ज्यादा चलता है. ये हिस्ट्री और ये रिसर्च बताती है. So moving forward, let me tell you some importance of English language. English boosts your confidence. English आपको वो confidence देती है जिसके थ्रू आपको लगता है कि यार अब अगर मुझे ये ज़बान आती है ना तो मैं कोई भी चीज़ कॉन्कर कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं किसी से कोई भी बात कर सकता हूँ. मैं एक बकवास बात जो कि उर्दू में बहुत शेमफुल लगती है ना, सेम बात अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी ना तो ऐसा लगेगा कि मैं प्यार के 2 बोल मीठे मीठे बोल रही हूँ आपको. एग्जाम्पल, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मुझसे दूर रहो. You're a very bad person. Please do not come close to me. देखा कितनी खालिस है, जबकि जबान को अगर ट्रांसलेट करो तो मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है. The meaning is absolutely the same. But you see how beautiful English language is. आपके तल्ख अल्फाज भी खूबसूरत हो जाते हैं अंग्रेजी से. So that gives you the confidence. कुछ बातें जो आप उर्दू में नहीं बोल पाएंगे किसी अगले बंदे को, आप अंग्रेजी में बहुत प्यार से बोल लेंगे और अगले बंदे को पता भी नहीं चलेगा उसकी इंटेंसिटी. That is what English gives you. Moving forward, it professionally enlightens you. मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखा रही हूँ. Can you see how somebody who is so good at English, जिसके पास अंग्रेजी की skills हैं, that person is chosen out of all. उसको चूज किया जाता है deliberately. Why? Because he is better than all other people. For example, अगर आप में IT की बहुत अच्छी knowledge है, मगर अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बंदा आपको hire नहीं करेगा. Why? Most cases में because they know कि IT की skills आपको 2 lecture से आ जाएगी. But English language is something जिसके लिए time लगता है. It does not need 2 to 3 classes. It does not need you to sit for 1 hour. It needs you to sit back to back. बार बार बैठें, उसको समझें, उसको सुने, उसको प्रैक्टिस करें और फिर उसके अंदर आप एक अच्छी एक सोलेस हासिल करें. That is what English skills give you, right? तो कोई भी अच्छा केमिस्ट होगा जरूर होगा, मगर उस पर कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा अगर वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, अगर वो अपने बॉस से बात नहीं कर सकता. बिकॉज लेट मी टेल यू, ऑफिस लैंग्वेज इज इंग्लिश. देयर इज नो उर्दू इन ऑफिसेज. मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम. So you see, it shines your personality, as I said, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी आती है, obviously you get chosen. When you get chosen, you become a shiny personality.
It connects you with the world. आज मैं अगर अमेरिका अकेले जाती हूँ तो मैं इसीलिए तो जाती हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरी जबान के जरिए मुझे वहाँ की इमिग्रेशन मिलती है, मुझे इसी जबान के जरिए वहाँ का वीजा मिलता है. अगर उसको ये बात पता होगी कि यार ये तो बिल्कुल फालतू आदमी है, इसको कुछ नहीं आता है, तो वो मुझे वीजा क्यों देंगे? You know, so this is about it. Moving forward, it makes you independent and gives you a huge number of opportunities. मैं आज अगर आपको अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ घर बैठकर, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे इंडिपेंडेंट कर रहा है. एक नॉर्मल जबान मुझे कितना इंडिपेंडेंट कर सकती है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है. इट कुड बी यू एज वेल. व्हाई नॉट यू? ओके, सो यू सी, अब हम बात करते हैं असल, जो कि मेन बात है, जो कि वो बात है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें. सो इफ यू टॉक अबाउट अस, इफ यू टॉक अबाउट मी एंड यू, इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट आर वी गोना डू, बोल रहा हूँ, राइम कर लिया यार, आई एम अ पोएट. सो यू सी 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. 4 स्किल्स होती हैं अंग्रेजी की. पहली होती है रीडिंग, देन राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. अगर आप गौर फरमाएं तो reading, writing and listening, all these 3 things will affect what you're speaking. If you are good at writing, that tells that you're good at what pronunciations, and you're good at what commas, you're good at punctuations. If you're good at listening, that means that you are understanding English and you will learn nice accents through listening. If you are good at reading, reading will give you good vocabulary. When reading will teach you good vocabulary, you will eventually speak good vocabulary. So you see, all these 3 things are good for your speaking. ये सारी चीजें आपकी speaking को affect करती हैं. So now I will like to tell you about the contents of our course. Now what are we going to do? So मैं हर डेमो में ये बात करती हूँ, और मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ, that my contents are never the same, because मुझे नहीं लगता कि हर बैच को सेम चीज पढ़ानी चाहिए. Obviously मेजर चीजें तो सेम रहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर डिश की तरह ना अपने मसाले जरूर लगाऊं. कभी नमक ज्यादा कर दूं, कभी थोड़ी मिर्च ज्यादा कर दूं, कभी थोड़ी खटास ज्यादा कर दूं, कभी नमक थोड़ा सा कम करके चटपटा चीज ज्यादा बढ़ा दूं. You know what I'm trying to say? So I try to make sure that I am making different dishes with different ingredients. So here you can see that the contents, जो कि main contents हैं, वो यहाँ पर enlisted हैं. So I try and make sure कि मैं reading, speaking and listening पर main focus करूँ, because ये 3 चीजें आपको learning में डालती हैं. Writing तो हम कब से करते आ रहे हैं. Moving forward, you will have a powered self-introduction. Now what does this mean? I want you all to have an introduction that makes a mark. मैं चाहती हूँ कि आप सबके इंट्रोडक्शंस ऐसे हों कि जब आप किसी से मिलें तो वो बंदा ये ना सोचे कि आप कहीं किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर अंग्रेजी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, जहाँ पर अंग्रेजी की इतनी वैल्यू नहीं है. वैल्यू ऐसे कि मतलब आज भी इंग्लिश एक ऑप्शनल डिग्री है. इंग्लिश एक ऑप्शनल डिग्री नहीं होनी चाहिए. इंग्लिश वो जबान है जो कि हर डिग्री में होनी चाहिए, जैसे कि दुनिया भर में होता है. दुनिया भर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर नाम का एक कोर्स होता है जो कि एंड तक चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता. So what I'm trying to tell you is that I do not want you to behave like somebody who does not have a background of English. मैं चाहती हूँ कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन दें तो अगले पे इतना अफेक्ट हो कि वो बोले कि wow man, you're so great at it. So you see, mind boosting vocabularies includes English rules and marks, everyday verbs, prepositions and punctuations, interrogative sentences with a twist, and self-enhancing vocal practices. Now self-enhancing vocal practices के लिए मैं आपको अपनी activities का chart दिखाती हूँ. So as I said, contents change होते हैं और उनके साथ साथ activities भी different होती रहती हैं. So what I make sure is that अपनी activities के अंदर मैं reading को जरूर accommodate करूँ, speaking तो obviously बहुत ज़्यादा होती है, and I make sure कि मैं mind boosting activities को भी बहुत target करूँ. Mind boosting activities में आता है मेरा कि how good you are at thinking, how good you are at responding immediately. That is what matters to me. So I make sure कि मैं thinking activities को बहुत ज़्यादा prominent रखूँ, because वो आपकी सोच, आपकी जो mind alert है उसको तेज करता है. So here you can see
that I have student-led discussions, I have English translations, I have word games, brainstorming, a little bit of debating, open mic reading, sessions for personal interests. Yani ki I ask my students about what they like, what they do not like, how do they like what they like, and why do they don't like what they don't like. And I also ask them, you know, like, I mean, what is your favorite place to go? How is your dream home like? And stuff like this. तो मैं इस किस्म के सवाल पूछती हूँ ताकि बच्चों के अंदर एक एडजस्टमेंट रहे और वो बात करें मुझसे एंड एक कंफर्ट लेवल क्रिएट हो जाए. Thriller videos in English, audio activities, thinking based activities, and quizzes and assignments. So these are some of the most important and some of the most common activities that I make sure that my